Dear students, in this video we are going to study CBSE class 10th English supplementary reader books first lesson, A Triumph of Surgery. This story is written by James Herriot, who is a veterinary surgeon. Let us read the story. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? So this story is about a dog Tricky and his mistress, Mrs. Pomfrey. The dog Tricky is overfed by his mistress. He is pampered, brought up with love and care. Due to overfeeding and no exercise, Tricky falls seriously ill. When he falls ill, his mistress, Mrs. Pomfrey, consults a veterinary surgeon. The surgeon, who is the narrator of the story, Dr. James Herriot. Does the doctor perform an operation? And does the dog recover? These are the questions. We shall know the answer in this story. Let us read and find out why is Mrs. Pomfrey worried about Tricky. What does she do to help him? Is she wise in this? Who does I refer to in this story? So I refers to the narrator of the story, James Herriot. He himself is a character in this story, and such a story in English in which the narrator himself is a character in the story is said to be written in the first person. So this story, A Triumph of Surgery, is written in the first person. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. So the narrator was worried about Tricky when he saw him with his mistress. Tricky and his mistress were on a walk. Narrator pulled up his car and he saw in the street the dog Tricky and his mistress, and he was shocked at the appearance of Tricky. Being a veterinary surgeon, he was shocked at the appearance of Tricky. What was so special in the appearance of Tricky? The narrator tells that Tricky had become hugely fat. He was looking, his appearance was like a bloated sausage. Bloated means होता है फूला हुआ, सुसेस मीन्स होता है एक प्रकार का मांस,
सिंड्रिकल शेप में। तो वो एक सिंड्रिकल शेप में फूले हुए मांस की तरह दिख रहा था। साहित्यकार, नैरेटर ट्रिकी के अपीयरेंस की तुलना करते हैं, को कंपेयर करते हैं एक ब्लॉटेड सुसेज से, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके ऑल 4 कॉर्नर्स पे एक लेग लगा हुआ हो। सो अनडाउटली ट्रिकी वॉज अ डॉग हैविंग 4 legs, so the upper part of the body was like a blotted sausage. His eyes were bloodshot, reddish, and rheumy. Rheumy means discharge of water from one's eyes and nose. It is a symptom of illness. So after seeing that, the eyes of Tricky were bloodshot and rheumy. The doctor, and he was usually fat, the doctor guessed that Tricky is suffering from a disease. He is disease prone. Next, Tricky was staring straight, सीधे देख रहा था, ahead, आगे की तरफ, and his tongue lolled out from his jaws. jaws उसके जबड़े से, his tongue उसकी जिह्वा lolled out बाहर की तरफ निकली हुई थी। तो ये डॉग्स में तो नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही बाहर निकली हुई थी उसकी जिह्वा। ये सैम्पसन्स थे जो बता रहे थे डॉक्टर को, जिसको देखकर डॉक्टर समझ गए, डॉक्टर हेरियोट समझ गए कि ट्रिकी इल है, बीमार है। अब इससे पहले कि डॉक्टर हेरियोट कोई सवाल पूछते मिसेस पैम्फरी से, मिसेस पैम्फरी ने खुद ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, रीजन बताना शुरू कर दिया। मिसेस पैम्फरी हास्टेंड टू एक्सप्लेन, हास्ट करना, शीघ्रता दिखाना, टू सो हरी, सो शी सो हरी टू एक्सप्लेन। He was so listless, कह रही हैं कि वो जो ट्रिकी है वो so listless, there is little energy and enthusiasm, lack of energy and enthusiasm means इसमें लगता है इसके शरीर में ऊर्जा की कमी है, बड़ा दुबला पतला हो गया है, कमजोर हो गया है। He was so listless, Mr. Heriot, he seemed to have no energy. ऐसा लगता है ट्रिकी के पास ताकत ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. The lady tells the doctor that she thinks Tricky is suffering from malnutrition, but the fact was that due to overfeeding and no exercise, Tricky was a victim of obesity. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. On one hand, where Tricky was suffering from obesity, her mistress is telling to the doctor that she is giving him extra diet. She describes the diets. I have given him some little extras between meals to build him up. What are the extras?
Some malt you all know, you all drink Horlicks, Bournvita. These are made up of Complan, these are made up of malt. And cod liver oil. Cod is a fish, it's liver oil. And a ball of Horlicks at night to make him sleep. She adds that she gives Tricky a ball of Horlicks at night so that he could sleep easily. Nothing much really. Means she is not satisfied with the meal and diet she is still giving him. करें नॉट रियली, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं दे रहे हैं उसको, यही दे रहे हैं. लगता है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है ट्रिकी. डॉक्टर हेरियट पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर that you must cut some sweets from Tricky's diet. Ma'am, have you cut his sweets from his diet or not? His sugar level is high. Oh, I did for a bit. Did for a bit? For some time. Oh, I did for a bit. But he seemed to be so weak, I had to relent. Relent, I have to be relent means I have to leave my harsh behavior. मुझे अपने कठोर व्यवहार का परित्याग कर देना पड़ा. डॉक्टर ट्रिकी इतना कमजोर हो गया है. Tricky seemed to be so weak, I had to relent. मुझे इसका अपने कठोर व्यवहार का परित्याग कर देना पड़ा. कैसे उसको मीठा खाने को हम न दें? He does love cream cakes and chocolates, so वो इतना ज़्यादा चॉकलेट्स को और क्रीम केक से प्यार करता है, कैसे इनकार करने देने से उसको हम? I can't bear to refuse him. अब जो भी हो यूं उसे न दे हम, ये हो नहीं सकता. आई कॉन्ट बियर, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसे खाने के लिए मीठा न दें. वो बहुत प्यार करता है डॉक्टर. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. आई रेफर्स टू द नरेटर जेम्स हेरियट. आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. That was the trouble. What was the trouble? Overeating was the trouble. Overdiet was the trouble. Tricky's only fault was greed. Tricky was a greedy dog. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. By writing this, the narrator James Herriot adds humor to his writing. He says that Mrs. Pomfrey, James Herriot says that Tricky had never been known to refuse food. भोजन को अस्वीकार कर देना ट्रिकी की फितरत में नहीं था. और he would tackle a meal at any hour of the day or night. दिन के किसी भी घंटे या रात के किसी भी घंटे आप उसे भोजन दिखा दो, भोजन दे दो, वो कभी इनकार करने वाला नहीं था. वो हमेशा खाने को तैयार रहता था. तो साहित्यकार यहां ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं. And I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. नरेटर कहते हैं कि and I wondered, हमें अभी आश्चर्य था कि मिसेस पॉम्फेरी हमसे वो सारा चीज जो उसको खाने में देती है, she is not telling honestly to me. कुछ ना कुछ अभी छुपा रही है.
Are you giving him plenty of exercise? The second question of the doctor and the very important question. भोजन तो आपने इतना सुना दिया उसको कि ये दे रहे हैं, भोजन इतना दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो आप ये बताओ एक्सरसाइज भी करा रहे हो या नहीं? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज प्रचुर मात्रा में दे रहे हो ना, कि खाना ही प्रचुर मात्रा में दे रहे हो? प्रचुर मात्रा में भोजन दे रहे हो तो प्रचुर मात्रा में एक्सरसाइज दे रहे हो ना। अगला अब उत्तर दे रही हैं मिसेस पॉम्फेरी। वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। अभी तो आप देख रहे हो ना, थोड़ी देर टहलने के लिए मेरे साथ आया है। बट हॉडगिन द गार्डनर, हॉडगिन इज द गार्डनर ऑफ मिसेस पॉम्फेरी, अनदर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो। तो कह रही हैं कि हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो, उसको बैक पेन है की समस्या है, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, लंबर रीजन। तो कहती हैं कि हॉडगिन दो मेरा गार्डनर है, उसको लम्बेगो से वो परेशान है, उसको मस्कुलर पेन है, बैक पेन है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेटली मीन्स अभी कुछ दिन से रिंग थ्रोइंग का गेम जो होता था, ट्रिकी खेलता था, वो बंद है। रिंग थ्रोइंग, यू ऑल नो, डॉग्स रिंग थ्रोइंग का गेम खेलते हैं, रिंग फेंक दिया जाता है, डॉग्स वहाँ जा करके उसको कैरी ऑन करते हैं, फिर ले करके आते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। इतना सुनने के बाद साहित्यकार कहते हैं, आई ट्राई टू साउंड सेवेयर, सेवेयर गंभीर, सीरियस, वो गंभीर लहजे में उनका स्वर गंभीर हो गया डॉक्टर पॉम्फेरी का, डॉक्टर हेरियट का। नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. पॉम्फेरी से कहा उन्होंने कि if Mrs. Pomfrey didn't cut Tricky's food right down and started to give him more exercise, Tricky was going to be really ill. So, see, Dr. Heriot suggested Mrs. Pomfrey to harden her heart, harden करना, कठोर करना her heart, अपने दिल को, and keep him on a very strict diet. इतना सुनने के बाद मिसेस पॉम्फेरी wrung her hands, उन्होंने अपने हाथ रंग किए। ओह आई विल मिस्टर हेरियट, आई विल, मैं जरूर ऐसा करूंगी। ओह आई विल मिस्टर हेरियट, आई विल, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। बहुत कठिन है ये डॉक्टर, ये बहुत कठिन है, मैं ऐसा अवश्य करूंगी डॉक्टर। उन्होंने अपने हाथों को रंग किया और कहा कि हाथ में हाथ को हिलाया और कहा कि देखिए डॉक्टर, मैं अवश्य ऐसा करूंगी, किंतु ये करना कठिन है। सी सेट अप हेड डाउन एलोंग द रोड, और इतना कहने के बाद वो सड़क पर आगे बढ़ गई, उनका सर झुका हुआ था। एज इफ डिटरमिन्ड, मानो उन्होंने निश्चय कर लिया हो, द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि जो नया रिजीम था, प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट था, डाइट डॉक्टर ने कहा था कि आपको उसका कट करना चाहिए, स्वीट्स नहीं देना चाहिए और उसको एक्सरसाइज कराना, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज आपको कराना चाहिए। तो पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वो अब तुरंत जो है उसको नए रिजीम की प्रैक्टिस शुरू करेंगे।
I watched their progress with growing concern. Doctor was hopeful that Mrs. Pomfrey would follow his instructions for the well-being of her beloved pet Tricky. Tricky was tottering along in his little tweed coat. अपने tweed coat में totter कर रहा था, moving up and unsteady manner में move कर रहा था. He had a whole wardrobe of these coats. Narrator अब बता रहे हैं ट्रिकी के परिधानों की चर्चा हो रही है. क्या शान शौकत की जिंदगी थी उनकी, उसकी चर्चा हो रही है. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. पूरे का पूरे wardrobe भरा पड़ा था इस तरह के कोट से. कोल्ड वेदर के लिए उसके पास अलग कोट था, एक रेन कोट था वेट डेज के लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन, संघर्ष करता था. ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस जो डॉग्स के गले में जो स्ट्रैप स्ट्रिंग लगा रहता है, पट्टी लगी रहती है, उसकी बात हो रही है. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्फेरी. तो प्रतिदिन देखते थे उसको और उनको ऐसा लगा कि वो समय दूर नहीं है जब एक कॉल आएगा मिसेस पॉम्फेरी के यहाँ से कि ही इज इल. Or the expected call came within a few days. It was expected from the doctor that she would call him regarding the illness of her dog. And the expected call came. Mrs. Pomfrey was distraught. Mrs. Pomfrey काफी distraught हो चुकी थी, extremely worried हो चुकी थी. Tricky would eat nothing. Why she called? Why did Mrs. Pomfrey call the doctor and why was she worried? The reasons were Tricky would eat nothing. He had refused even his favorite dishes. And besides his refusal to his favorite dishes, and he had eaten nothing. He had bouts of vomiting, short pills. थोड़ी देर के बाद उल्टी हो रहा था उसका. It was not a symptom of a physical disease. Mrs. Pomfrey was distraught, but the doctor knew it well that it was not a serious physical disease. It was only due to overfeeding and no exercise. That's why he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, एक कपड़ा, dirty, particularly cloth जो होता है, panting, breathing with short, सांस धीरे धीरे लेना, out of breath हो जाना. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. This was the problem with Tricky. He had refused his favorite dishes, he had eaten nothing, he had refused to go for walks, and he didn't want to do anything, and he had bouts of vomiting. This was problem with Tricky. I had made my plans in advance. James Herriot is a professional doctor. He is a wise doctor. So he says that I had made my plans in advance. मेरी तो योजना पहले से ही तैयार थी कि क्या करना है इसके साथ. मैं उसको देख रहा था, मैं जानता था कि जो इसको व्याधि है, रोग है, डिजीज है, उसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से इसको करना है, इसका उपचार क्या है. मैं तो पहले से ही तैयार बैठा था.
I had made my plans in advance. The only way was to get Ricky out of the house for a period. But in order to execute my plannings, I had made the doctor says that I had made plans for Ricky. And in order to execute the plans I have designed for Tricky, it was mandatory to keep Tricky out of the house, out of the care of, out of the eyes of Mrs. Pomfrey for a short period of time. Because in her presence it was impossible to execute on those plans. Mrs. Pomfrey is epitome of ever-indulgent caretakers. There are parents who are too much possessive about their kids. Their overdoing of things harm their children. They should not show unnecessary love to their young ones, as it might be fatal to their life. On the other hand, James Heriot is truly a professional doctor. He diagnosed the reason behind the ill health of Tricky. He handled the situation tactfully and he adjusted himself well with the circumstances. So, he suggested Mrs. Pomfrey to hospitalize Tricky for about a fortnight to be kept under observation. For a fortnight means for 15 days. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया मिसेस पम्फरी से कि वर्तमान परिदृश्य में ट्रिकी के स्वास्थ्य के लिए ये अपरिहार्य और आवश्यक है कि उसे 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में आप एडमिट कर दें. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुंड, उनकी तो लगी कि जान ही निकल गई. ऑलमोस्ट सुंड. शी वॉज श्योर he would pine and die if he didn't see her every day. Pine and die. उन्हें लगा कि वो मर जाएगा, ट्रिकी मर जाएगा अगर उन्हें वो नहीं देखा. If Tricky failed to see Mrs. Pomfrey, he would die and she herself would die. Tricky was very ill and this was the only way to save him. डॉक्टर हेरियोट कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ था. इसलिए उन्होंने एक फर्म लाइन पे इस बात को कहा, टू बी डिटरमाइंड टू टेक अ डिसीजन. फर्म लाइन पे इस बात को कहा. ट्रिकी वॉज वेरी विल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और the narrator thought that it would be best for him to take Tricky to hospital without any delay. और आगे जब ये मिसेस पम्फरी को लगा कि अब डॉक्टर लेकर के जाएंगे इसको, तो आंखें सजल हो गईं मिसेस पम्फरी की. ये पार्टीशन का समय है, विदाई का वक्त है, जुदा हो रहा है मिसेस पम्फरी का प्यारा ट्रिकी उनसे. मिसेस Pomfrey's wailing, crying loudly. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. The narrator marched out to his car और उन्होंने ब्लैंकेट में ढक लिया था ट्रिकी को. अब आगे की जो दृश्य है बड़ा मनोरम है, कारुणिक है. जुदाई का वक्त है, विदा हो रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है.
tricky. Though the entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber things, breakfast ball, lunch ball, super ball. Realizing that my car would never hold of all this stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Everybody was in tears. The entire staff was roused. पूरा का पूरा जितना स्टाफ था घर का सब उठ खड़ा हुआ. मेड्स रस्ट इन एंड आउट, नौकरानियां अंदर बाहर दौड़ लगाने लगी. कोई डे बेड लेकर आ रहा था, कोई ट्रिकी का नाइट बेड लेकर आ रहा था, कोई उसका फेवरेट कुशन लेकर आ रहा था, कोई टॉयज लेकर आ रहा था, कोई रबर रिंग्स लेकर आ रहा था, कोई ब्रेकफास्ट बॉल लेकर आ रहा था, लंच बॉल, सुपर बॉल. इतना सारा सामान, इतना सारा सामान. रियलाइजिंग वाक्य की शुरुआत जेरंड से हो रही है. अंग्रेजी भाषा को सीखने वाले विद्यार्थी समझें कि वाक्य में के सब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग किया जाता है. रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करके कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑफ ऑल द स्टफ, ये सारा सामान मेरे कार में नहीं आ पाएगा, उतनी कैपेसिटी नहीं है कार की. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं गाड़ी को चलाया और लेकर के आगे बढ़ गया. एज आई मूव्ड ऑफ मीन्स दूर, जब हम थोड़ी दूर गए, मिसेस पम्फ्री विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयर निराशा से भरी हुई, नैराश्यपूर्ण चीख के साथ, थ्रू फेंक दिया, एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, खिड़की से उन्होंने फेंक दिया. आई लुक्ड इन टू द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर पर घूमने से पहले मैं मिरर से देखा. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सबकी आंखें, सबकी आंखों में आंसू थे. आउट ऑन द रोड, सड़क पर की अब बात हो रही है. जब साहित्यकार अब सड़क पर गए जाते हैं. आउट ऑन द रोड I glanced at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. तो सड़क पर जो है वो पैथेटिक लिटिल एक एनिमल जो है, जो डॉग है, उसके ऊपर देखा उन्होंने. गैस्पिंग, बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा था. ऑन द सीट बाई माई साइड, नरेटर के सीट के बगल में. आई पैटेड द हेड, उसका सर थपथपाया नरेटर ने. ट्रिकी मेड अ ब्रेव इफॉर्ट टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को वेव करने का बहादुरी से प्रयास किया. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट ए किक इन यू, यू हैवंट अ किक इन यू, यू हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट इन यू, बट आई थिंक आई नो ए कर फॉर यू. मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या हुआ है, मेरे पास उसका निदान है. तुमको किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, तुमको कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है. तुम्हारा सब कुछ ये जो है वो तुम्हारे फूड एहोलिक होने के कारण ये हुआ. तुमको भोजन छोड़ना पड़ेगा, भोजन का त्याग करना पड़ेगा, फास्टिंग करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज पूरा करना पड़ेगा. तुम ठीक हो जाओगे. आई नो ए कर फॉर यू. And now read and find out. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? How does he treat the dog? Why is he tempted to keep Tricky on a permanent guest? क्यों साहित्यकार चाहता है कि ऐसा तुम ट्रिकी यहीं रहो, परमानेंट गेस्ट बन जाओ मेरे हॉस्पिटल का तुम. ऐसा क्या होता है कि इस तरह का भाव एक डॉक्टर के मन में आ जाता है कि वो एक पेशेंट को गेस्ट के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका मन कहने लगता है उसको,
आइए कहकर इस कहानी को आगे पढ़ें और जानें हम लोग। एक अगला प्रश्न है, व्हाई डज मिसेस पम्फरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? ट्रिम्फ मीन्स विजय, सर्जरी एक हॉस्पिटल, डॉक्टर का। At the surgery, the household dogs surged round me. अब सर्जरी अपने हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचते हैं डॉक्टर हीरियो ट्रिकी को। ट्रिकी अनकस्टम्ड है सारे जो हाउस होल्ड डॉग्स हैं उनसे, और वो सारे के सारे डॉग्स जो हैं वो सर्ज्ड अराउंड, मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड, अप एंड राइट. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. Tricky looked down at the noisy pack, जो समूह था डॉग्स का मिसेस पम्फरी के सर्जरी में, जो डॉग्स उनके हाउस होल्ड डॉग्स थे, उसके नॉइजी पैक को अपनी डल आईज से देखा, मध्यम धूमिल आंखों से देखा। माहौल अनजान था, उस माहौल से अपरिचित था। व्हेन पुट डाउन, जब उसको गाड़ी से निकालकर नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो कारपेट के ऊपर वो मोशनलेस पड़ा रहा, गतिहीन पड़ा रहा। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते ने जब देखा कि एक नया आया है, ये कौन है, कहां से आया है, ये कहां से आ गया, कौन है भाई, गए उसके यहां, स्निफिंग, सूंघना शुरू कर दिया। डॉग्स का स्वभाव होता है सूंघते हैं, घ्राण शक्ति सबसे ज्यादा डॉग्स की मोस्ट पावरफुल होती है, तो सूंघना शुरू कर दिया। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, एक दो सेकेंड्स के लिए। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये निश्चय करने के बाद कि ये कोई रुचिकर प्राणी नहीं है, अनइंटरेस्टिंग, कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। इग्नोर्ड हिम, तब उपेक्षित कर दिया, सारे कुत्तों ने उसको छोड़ दिया, चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. नरेटर कहते हैं कि और तब हमने जहाँ पर दूसरे डॉग्स सोते थे उसी के बगल में एक वार्म लूज बॉक्स जो है वो लगा के उसमें ट्रिकी का बेड ठीक कर दिया। For 2 days I kept an eye on him. उसके ऊपर नजर रखा। Giving him no food but plenty of water. So ये उसको अब उसकी दवा शुरू हो गई। क्या किया डॉक्टर साहब ने? For 2 days the doctor gave him no food but plenty of water. 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी उसको देते रहे। ऐसा इसलिए किया डॉक्टर ने क्योंकि ऑलरेडी उसके स्टोमक में बहुत सारा फूड बचा हुआ था, तो पूरा का पूरा डाइजेस्ट प्रॉपरली हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। नो मेडिसिन। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अब जब 2 दिन बिना खाने के गुजरा, तो ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। पहले तो लो मोशनलेस, जब गया वहां पे, घर पे जब था, तो किन परिस्थितियों में गया इसका वर्णन हुआ है। आई हैव ऑलरेडी हैव डिस्क्राइब्ड इन विच सर्कमस्टांसेस मिसेस पम्फेरी कॉल्ड द डॉक्टर। He has frequent vomitings. He had refused to take his favorite meals. He has problem in breathing. और जब वहां गया तो डॉक्टर ने उसको 2 दिन तक खाने के लिए ही नहीं दिया। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अपने अगल बगल आस पास में थोड़ा सा इंटरेस्ट अब उसका लगने लगा।
एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, वो जो है विम्पर करना शुरू कर दिया, हल्का आवाज़ निकालना शुरू कर दिया, मेक अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड्स। तो when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. Trotted out, ran at a moderate pace with short step, engulfed, surrounded or covered completely by Joe. जो एक डॉग था, जो ट्रिकी के हाउस डॉग में से एक था, डॉक्टर हेरियट के हाउस डॉग्स में से एक था जो, वो आकर के घेर लिया। द ग्रे हाउंड, दूसरा डॉग, एंड हिज फ्रेंड्स, और सारे के सारे उसके फ्रेंड्स आकर के और ट्रिकी को घेर लिए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, रोल करना शुरू कर दिया, उसको घुलाटना शुरू कर दिया, रोलिंग करना शुरू कर दिया। एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, पूरा उसको इंस्पेक्शन करने लगा उसका। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और इतना करने के बाद सारे डॉग्स जो है वो ऑफ द गार्डन चले गए। पीछे पीछे ट्रिकी भी, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अभी उसका जो सरप्लस फैट था उसके साथ वो रोलिंग, लुढ़कते हुए धीरे धीरे वो स्लोली जो है वो चला गया, वो भी चला गया डाउन द गार्डन। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद नरेटर कहते हैं कि वो फीडिंग टाइम, जब डॉग्स को फीड किया जाता था, खिलाया जाता था, तो वो स्वयं उपस्थित रहते थे। आई वाच्ड व्हाइल ट्रीसन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। ट्रीसन जो एक उनका वर्कमैन था जो डॉग्स को फीड करता था, तो और जो स्लॉप्ड है, जो खाने में से डॉग्स वगैरह आप देखे होंगे खाते हैं, तो उनके वो जो उनका जो पॉट होता है उसमें से वो बाहर कुछ गिर जाता है, गिरा देते हैं लोग, तो उसको स्लॉप्ड बोलते हैं। स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स, बॉल्स में रख देता था। देर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई पिच्ड ईटिंग। नॉर्मल डेज में जब डॉग्स खाने के लिए जाते थे तो हाई पिच्ड ईटिंग का साउंड प्रोड्यूस होता था। डॉग्स जब खाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है उनके माउथ से, तो वो साउंड सुनाई देता था। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे, हर डॉग ये जानता था, नरेटर कहते हैं कि हर डॉग को ये पता होता था कि अगर वो खाने में पीछे रह गया तो अदर्स, ही वॉज लाइएबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे बाकी का अपना लास्ट पार्ट ऑफ जो मील है उसके लिए अदर डॉग्स के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। When they had finished, जब सारे डॉग्स ने अपना खाना समाप्त किया, ट्रिकी टू के वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, देन ट्रिकी वेंट टुवर्ड्स द शाइनिंग बॉल्स, नथिंग वाज लेफ्ट इन देम, लीकिंग कॉजली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। तब तीसरे दिन की बात है, तीन दिन के बाद की बात है, चौथे दिन वो ट्रिकी जो है वो गया और लीकिंग करना शुरू कर दिया, एक दो बॉल्स को उसने चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नरेटर ने कुछ इंतजामात किए ट्रिकी के लिए। एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और देखा नरेटर ने कि वो जो अलग से बॉल एक रखा गया था उस बॉल को लेकर के वो जॉस्टलिंग कर रहा था, मतलब वो धक्का मुक्की जो है वो कर रहा था, पुश और पुल कर रहा था, बॉम्ब अगेंस्ट ईच अदर, धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड मीन्स फास्ट रिकवरी, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। He had no medicinal treatment of any kind, उसे किसी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरे दिन वो अदर डॉग्स के साथ वो दौड़ते रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनके फ्रेंडली रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल्स में उनका साथी बना रहता था। he discovered, उसने डिस्कवर किया द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, कि जब
बोल्ड ओवर करते हैं, धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं डॉग्स, तो उसका क्या मज़ा आता है। और ट्रैम्प्ड ऑन, जब कोई उसके ऊपर पैर रख देता है तो क्या मज़ा आता है। एस्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, तो ये जो गेम्स होते हैं अपना वो अलग अलग खेलते हैं डॉग्स, तो वो इन सब चीज़ों से वो अनजान था। ही वॉज फर्स्ट टाइम इन द कंपनी ऑफ द डॉग्स एंड ही स्टार्टेड टू लव द कंपनी। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और धीरे धीरे विद इन 4 days ही बिकम ऑल द डॉग्स ऑफ द हाउस सर्जरी एक्सेप्टेड Tricky as his friend, and Tricky became friendly to each other. And unlikely, but he was unlikely with other dogs, because what was difference? Others were the saggy crew, उनके बड़े बड़े बाल थे, जबकि ट्रिकी का सिल्की बाल था। वो बड़े बड़े कुत्ते डॉग्स थे, और लेकिन ट्रिकी जो है लिटिल ऑब्जेक्ट, उनके बीच एक छोटा डॉग था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मिल टाइम्स, और मिल टाइम्स में छोटा तो था लेकिन टाइगर की तरफ फाइट करने लगा अब वो। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउसेज एट नाइट, और रात के समय में हंटिंग रैट हाउसेज में जब ये हंटिंग करने के लिए लोग जाते थे, डॉग्स जाते थे, तो वहाँ पर भी वो एक टाइगर की तरफ फाइट करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। ये बहुत बड़ी बात है कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, और एनिमल्स टू लिव इंजॉय देयर ओन कंपनी। पशु को जो है, पशु का ही जो उसका समाज है, उसका जो स्पीसीज है, उसके बीच में वो अपना नेचुरल जो है वो डेवलपमेंट हो पाता है उसका। तो ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसको ज़िंदगी में उस तरह का समय हैप्पी टाइम नहीं मिला था। ऑल द वाइल मिसेस पंप, और इसी बीच अब अगले पैराग्राफ में नरेटर बता रहे हैं कि इधर तो ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। जब ये चल रहा था ट्रीटमेंट, तो मिसेस पॉम्फेरी की क्या स्थिति थी। अभी आप सब लोग मैं मिसेस पॉम्फेरी को देखा था कि जब लेकर चले वहाँ से डॉग को, ट्रिकी को लेकर चले, तो पूरा का पूरा घर, पूरा मेड्स सारे के सारे लोग आंसुओं में थे। पूरा घर का सामान ला करके गाड़ी में रख दिया। साहित्यकार को भागना पड़ा वहाँ से कि पूरा का पूरा लगता है घर ही गाड़ी में डाल देगा लोग। तो अभी थोड़े देर तक हम लोगों ने यहाँ 4 दिनों तक मिसेस पॉम्फेरी की चर्चा नहीं हुई है। अब देखते हैं कि कैसे जी रहे थे हम, मिसेस पॉम्फेरी कैसे जी रही थी जब उनका प्यारा चहेता दुलारा डॉग ट्रिकी उनके साथ नहीं था। ऑल दैट फाइल, पूरे दिन जब से वो आया था और अभी तक, मिसेस पॉम्फेरी होवर्ड एनेक्सियसली टू मूव राउंड, पेस घूमते रहना, चलकदमी करते रहना, इन द बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड में वो होवर राउंड करती रहती थी। रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, एक दिन में दर्जनों बार फोन करती थी डॉक्टर हेरियट को फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, क्या हुआ, कैसे हुआ, खाना खाया, कैसी तबीयत है, टू इंक्वायर अबाउट दिस थिंग्स। आई डॉज्ड अवॉइडेड, साहित्यकार ऑनेस्टली बोलते हैं तो हम तो अवॉइड करते थे। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछती थी मिसेस पॉम्फेरी की, क्या उसकी क्वेश्चंस लगातार चेंज की जाती हैं या नहीं, तो इन तरह के प्रश्नों को वो जो है वो डस्ट कर देते थे, अवॉइड करते थे डॉक्टर। और हिज करेक्ट कोट ऑन अकॉर्डिंग टू द वेदर, पूछती थी कि वेदर के अनुसार उसका ठीक से कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली। और मैं, लेकिन कहते हैं नरेटर कि मैं उनको इन सब प्रश्नों के तो जवाब टाल देता था, लेकिन उनको ये ज़रूर बताता था कि वो कन्वल्सिंग रैपिडली मीन्स ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस वेरी फास्टली। द वर्ड कन्वल्सिंग सिम टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्फेरी, ये सुन करके कि उसकी रिकवरी हो रही है, वो उनको, उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता था। और क्या प्रभाव पड़ा, जब मिसेस पॉम्फेरी ने सुना कि कन्वल्सिंग, ही इज़ कन्वल्सिंग, ट्रिकी इज़ कन्वल्सिंग,
उसकी तबीयत ठीक हो रही है। तो तबीयत ठीक हो रही है, तो अब तबीयत ठीक होने, ही इज कन्वाल्सिंग मीन्स ही इज गेटिंग रिकवरी फ्रॉम सर्जरी। मिसेस पॉम्फरी ने सोचा कि वो उसकी सर्जरी हुई है और वो सर्जरी से रिकवर कर रहा है, तो काफ़ी लॉस ऑफ एनर्जी हुआ होगा, उसको वीकनेस हुआ होगा, इसलिए उसके फास्ट रिकवरी के लिए कुछ अगर एक्स्ट्रा डाइट दिया जाए तो वो फास्ट रिकवरी करेगा। और इसी बात को सोच करके, जबकि सच्चाई तो ये थी कि किसी तरह की कोई सर्जरी ट्रिकी की हुई ही नहीं थी, लेकिन मिसेस पॉम्फरी को लगा कि सर्जरी हुई है, उसकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, रिकवरी कर रहा है, तो उसको ओवर डाइट चाहिए, भोजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, तभी तो वो जल्दी रिकवर करेगा ना, तो मेरे पास आएगा। ये सोच करके आगे का जो एक्शन है, अब इसे मोहब्बत कहें मिसेस पॉम्फरी का या उनकी नासमझी कहें, जो भी रहा हो, गलत तो है ही, किंतु प्रेम का अपमान नहीं किया जा सकता। इट वॉज लव, मिसेस पॉम्फरीज लव टू द डॉग। मुझे महादेवी वर्मा का गिल्लू याद आता है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs. आपने हिंदी साहित्य के कालजयी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की वो कथा जरूर पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा, हीरा और मोती की कथा। तो हीरे और मोती अपने मालिक से कितना प्यार करते हैं और इन रिटर्न उसका मालिक भी उनसे कितना प्यार करता है, ये जब जाहिर है। तो प्रेम किसी भी रूप में हो, किसी के साथ भी हो, प्रेम तो अंधा होता ही है। मिसेस पॉम्फरी ये नहीं समझ पा रही थी कि उनको इतना ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, और उन्हें को ये समझना चाहिए था कि ट्रिकी फूड एहोलिक है, तो थोड़ा भोजन जो है रोक के देना चाहिए था उसको। द वर्ड convulsing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs. ताज़ा ताज़ा अंडा लाना शुरू कर दिया। खिलाओ भाई, जल्दी रिकवर हो, सर्जरी हुई है, सर्जरी हुई है, जल्दी रिकवरी हो, इसके लिए फ्रेश एग्स लाना शुरू कर दिया। 2 डोजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ईच फॉर ब्रेकफास्ट, टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत, जल्दी से उसको ताकत आ जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से मेरे पास आ जाए, इसके लिए 2 दर्जन अंडे एक बार लाना शुरू कर दिया। और इधर फॉर ए हैप्पी पीरियड, बहुत खुशहाल समय था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे और मेरे सहयोगियों के तो अब दिन ही क्या कहते आए, दिन बहार के, हैप्पी पीरियड। एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। हम लोग सब आदमी सुबह में 2 अंडा ब्रेकफास्ट में लेना शुरू कर दिए थे। अंडा आता था ट्रिकी के लिए कि बेचारे की सर्जरी हुई है, ही हैज़ गॉन थ्रू सर्जरी, और अंडा खा रहे हैं। पेशेंट की जगह डॉक्टर साहब अंडा खा रहे हैं। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, अभी अंडा ही नहीं, आगे और सुनिए, वाइन के बोतल्स भी आना शुरू हो गए। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो अब उसके बाद अब स्थितियां अब अकल्पनीय हो गई। आगे की स्थिति ट्रिकी के ब्लड को इनरीच करने के लिए, उसका ब्लड जो है जल्दी से इनरीच कर जाए, वो वाइन के बोतल्स आने लगे। और उसके बाद लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। उसके बाद तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब का, डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि मेरा और मेरे स्टाफ का भोजन साहब, ईमानदारी से कहता हूँ कि लगता था कि पार्टी चल रही है, सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था। खाना खाने से पहले 2 गिलास और
खाना खाने के बीच में तो ब्रेकफास्ट सुबह अंडा से शुरू हो गया, दो दो अंडे, खाना खाने से पहले 2 गिलास वाइन, और बीच में जितना आप पी लीजिए। ट्रिकी का ऑपरेशन हुआ है, उसका ब्लड इनरीच करना है, तो उसकी मालकिन ने ये भेजे हैं। बेचारा, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहते हैं डॉक्टर साहब कि लास्ट में जो है वो अंत में, वी कुड हार्डली बिलीव इट, बड़ी मुश्किल से हमें ये यकीन हुआ जब फाइनल एज ऑफ ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकीज के हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए लास्ट में जब ब्रांडी की बोतल आने लगी तो हमें बड़ी मुश्किल से विश्वास हुआ। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड। 1-2 रात तक तो बेचारा घुलटते रहा, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। They were days of deep content. वो दिन बड़े डीप मीन्स गहरे, कंटेंट संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा, याद कर रहे हैं उन दिनों की, वो जब आया था हॉस्पिटल में। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह में एक्स्ट्रा एग के साथ, 2-2 अंडे के साथ। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। दिन में पूरा वाइन के साथ भोजन, शुरू में 2 गिलास बीच में, और रात में ठंडे के मौसम में आग के पास बैठकर ब्रांडी। क्या दिन थे वो। आए हो मेरे हॉस्पिटल में तुम बाहर बन के, क्या बात है। आए हो मेरे हॉस्पिटल में तुम बाहर बन के। इस हॉस्पिटल में सदा रहना तो यूं बीमार बन के। जी, मेरे हॉस्पिटल में आए हो, मेरे हॉस्पिटल में तू बाहर बन के बीमार पड़े रहना तुम यहीं। These were the days of they were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation means akarshan, attraction. It was a temptation to keep Tricky on a permanent guest. So there is a question in the textbook. डॉक्टर साहब उसको क्यों परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे, मैंने अभी वर्णन किया है उसका। तो बट आई न्यू मिसेस पेम्फरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, वो चाहते थे उसको रखना, किंतु उन्हें मिसेस पेम्फरी की याद आई कि उसके बगैर कैसे थी वो। Separation, the whole universe is built up through love, and that the grief of separation is inescapable. डॉक्टर जानते थे इसको। डॉक्टर knew that he was a professional doctor and a beloved of humanity. He knew that this whole universe is built up through love, and that the grief of separation from its near ones and dear ones is इनएस्केपेबल। चाहते तो थे कि परमानेंट गेस्ट बना ले ट्रिकी को, यहीं रहे कि यूं ही अंडा, वाइन और ब्रांडी आता रहे, किंतु खबर किया, इत्तला किया, संदेशा भेजा मिसेस पम्फरी के पास। आई न्यू मिसेस पम्फरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, फिर 15 दिन के बाद फेल्ट कॉम्पेल्ड, मजबूर हो गया अपने दिल के हाथों, to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. आइए और उनको लेकर के जाइए। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Within minutes, फोन करने के मिनट के अंदर एक बड़ी 30 फीट लंबी गाड़ी, कितनी रीच महिला थी ये, दिस लाइन्स टेल अस।
ग्लीमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई। द चॉफर ओपन द डोर, चॉफर इज द ड्राइवर, उसने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पम्फरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। अंदर बैठी हुई थी, उनकी वो दिखाई पड़ी। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? सच बताओ, क्या वो सच में सही हो, ठीक हो गया है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car, madam. I shall go and fetch him. आप अंदर रहिए, ठीक हो गया है मैडम, आपको उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद लेकर आता हूं उसको। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in their midst. Ear flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. जब उसको लेने के लिए डॉक्टर साहब नरेटर गए तो बड़ी संख्या में डॉग्स जो थे वो हर्टलिंग राउंड एंड राउंड कर रहे थे लॉन में, और उनके बीच में अपनी आँख को फ्लैपिंग कर रहा, टेल को वेविंग कर रहा एक जो छोटा सा लिटिल गोल्डन कलर का जो डॉग था वो ट्रिकी था। 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था इनटू अ लिद हार्ड मसल्ड एनिमल। He was keeping well up with his pack, stretching out in the great bounds, his chest almost buzzing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw, जब उसने देखा his mistress, he took off from my arms and a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. उनकी गोद में उछल के डॉक्टर के से चला गया। She gave a startled oh, आश्चर्यचकित विस्मित oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, कोट्स एंड बॉल्स, सब लाने में मदद किया। आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पॉम्फेरी, During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. कोई यूज नहीं किया गया था, जैसे आया था वैसा ही रखा गया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Leaned out, बाहर झांकना। Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mr. Heriot, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. This is a triumph of surgery. Mrs. Pumphrey thinks the dog's recovery is a triumph of surgery. Actually, she is so excited that tears start rolling out of her eyes. She declares Tricky's recovery as a triumph of surgery to express her happiness and gratitude towards the doctor, but it is not true. Tricky didn't go under any surgery. It was just diet and play that made him active again. So students, thank you all for being with me. In the next video, we shall meet with the next lesson. Thank you.